हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें जो हम करेंगे नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इसका मतलब होता है विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप, जिसमें हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most important chapter arrive here, nature of geography as a discipline. There is the most important chapter. There is the most important here point arrive a geography in a daily life. What do you mean to hear a geography in a daily life? There is a most important topic, and you must have noticed that the Earth as a surface ever changing. In general, the nature of phenomenon like a mountain, rivers, lakes, etc. A change slowly will the cultural element like a buildings, road, crop change of fast. Traveling from one place to another, you notice that a tree numbers and types of tree is a change from area to area. All this is because of the continuous interaction between to the environment in which we live in and their way we use it. The study of geography is about observing such a pattern. Another aspect of geography is to be understand the factor or reason behind area differentiations. How do a social, culture, economics, and geographic factor change our physical landscape and create a new or alternated landscape by the human interventions? For example, human settlement or transformation of forest and barren land for living as a purpose by human beings. Geography is often thought of the art of making of study of map. That is the most important, the art of making and study of maps or the geography. The maps give us a much more correct and graphical view of the way of the earth's surface look compared to a picture of drawing. As earlier, even today, geographical information about an area is available through the report and travel diaries and gazettes. At the present, the maps can be drawn by using satellite images using to the is a graphical information systems tools, means GIS. There is a geographical information system. Computer easily convert the information from a satellite image into the map to show that change the development can vary about. Such information of the benefit to be society, such as a map marker, are is greater demand today. No way of the days is a geographers, is a engineers, environmental scientists, cities planner, and social scientists, and many other learn for the GIS to understand to the earth better. Geographic is not on the investigate is the what is where on the earth, but also why it is the there. Geographer is a study the location of the activities is a carefully identify pattern using to map and find out the reason for these patterns. And the area are there described based on the distribution of the land form, their population, house types, and the agriculture. They discover the linkage and movement between to the place are able to the infer their apparel processing that are working in a area. That is the most important. Today all over the world
there are a problem related to the providing food security, health, effective energy use, and environmental conservation. Equally important are equalities issue of sustainable development. All these can be achieved by using our source in a sustainable way. A study of geography is therefore necessary to learn more about the environmental process and to understand how land use planning can help us to overcome problems. In the way, the geographical is a science of the space. And secondly, here, maps are essentially tools of geography. And their third here, a digital geographical information system is a new tool for making a maps. And there's the most important. And fourth here, spatial is a planning can be done using both maps and the study of geography. There is a next here. Their basic concept. Geography has been defined differently through the different periods of its history. Geographical work is ancient Greece had a flowing two distinct tradition. One was the mathematical tradition, which was a focus on fixing the location of place on the Earth's surface, and the other was a gatherings geographical information through a travel and field work. That is the most important. And according to them, the purpose of geography was to provide a description of the physical feature and condition in different parts of the world. The emergence of the regional approach in geographical also imposes their descriptives or character of geography. According to the Humboldt, is a geography is the science related to the nature and it is study and describe all the material things found on the earth. Another important school of thought that defined to geography as the study of man-environment relationship. There is the most important here, man-environmental relationship. There is geographical as a study of Earth's surface. There is the most important things here. Geographical as the study of Earth's surface. And second here, geography as the study of man-environment relationship. There is also important geography as the study of man-environment of relationship. यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर आया है ज्योग्राफी का फर्स्ट है। कहते हैं अगर फर्स्ट नहीं करते हो तो आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं होगा, तो इसलिए ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। अगर हम आज चैप्टर की बात करें तो हम विषय के रूप में भूगोल का जो है स्वरूप के जो है चैप्टर हम कर रहे हैं फर्स्ट, जिसका पहला टॉपिक यही कहता है कि दैनिक जीवन में भूगोल। देखिए दैनिक जीवन में भी जो है भूगोलिक का जो है अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आखिर आप सोचिएगा कि भूगोल का जो है हमारे जो है दैनिक जीवन में क्या अर्थ है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि पृथ्वी की सतह पर लगातार परिवर्तन होता रहता है, ये आपको देखने को मिला ही है। सामान्यतः प्राकृतिक तत्व जैसे पर्वतें, नदियाँ, झील आदि में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और जबकि जो है संस्कृति तत्व जैसे भवन, सड़कें, फसलें आदि में तेजी से परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते समय आप महसूस करते होंगे कि वृक्षों की संख्या व आकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन होते चले जाते हैं। यह सब पर्यावरण जिसकी हम रहते हैं तथा उसका प्रयोग करते हैं कि लगातार अंतक्रियाएं के फलस्वरूप हो रहा है। भूगोल इस प्रकार के प्रतिरूपों का अध्ययन करता है, और भूगोल का एक अन्य पक्ष क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारकों या कारणों को समझने में है कि किस प्रकार जो है सामाजिक, संस्कृति, आर्थिक और जनकिकीय कारक जो है भौतिक जो है स्थल रूप को परिवर्तन कर रहे हैं, और मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप जो है नवीन स्थल रूपों का जो है निर्माण हो रहा है। यानी मानव गतिविधियों के कारण बहुत से जगह जो है जहाँ नए नए चीज़ों का जो है निर्माण हो रहा है, जो आपको देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए मानव वन या बंजर भूमि का प्रयोग मानवीय अधिवास के रूप में कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। कहते हैं इंसान ने भौगोलिक जो स्थिति को जो है बिल्कुल ही परिवर्तन कर दिया है, और आज ये देखने को भी मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूगोल को प्रायः मानचित्र निर्माण और अध्ययन की कला के रूप में जाना जाता है। मानचित्र हमें रेखा चित्रों की अपेक्षा पृथ्वी के धरातल पर अधिक सही एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत भी करता है। पूर्व की भांति आज भी किसी क्षेत्र का भौगोलिक विवरण, रिपोर्ट, यात्रा डायरी और गैजेटरीज में उपलब्ध होते हैं। यानी ये चीज़ें सारे चीज़ जो आजकल है आधुनिक काल बन गया है, और यहाँ पर हर चीज़ जो है गैजेट के रूप में आपको दिखेगा। कहते हैं वर्तमान में मानचित्र की संरचना भौगोलिक सूचना तंत्र यानी
एस के रिगार्डिंग होता था। यानी अगर आप देखोगे तो मानचित्र प्राप्त करके जो है हम किसी भी क्षेत्र के जो है विषय में जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप ये देखते भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इन उपकरणों के द्वारा जो है उपग्रह छात्र छायाचित्रों के प्रयोग से किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा, अगर आप अपने क्षेत्र के दृश्य देखना चाहते हो तो इसका भी सैटेलाइट जो है आपके समक्ष भेज देता है। इसमें सिर्फ आपको गूगल पे रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर जो है सरलता से उपग्रह छायाचित्रों की सूचनाओं को जो है मानचित्र में परिवर्तन कर देता है, जो विकास में हुए परिवर्तन को भी दर्शाता है। क्योंकि मानचित्र आपको पता है कि हर समय में खींची जाती है, हर कुछ काल में खींची जाती है, और जो भी परिवर्तन होता है वो चित्रों में साफ दिख जाता है। तो ये मानचित्र जो आते हैं या मानचित्र बनते हैं, ठीक है, वो उपग्रह द्वारा भेजा गया छायाचित्र के रिगार्डिंग ही बनाया जाता है। इस प्रकार की सूचना से समाज को लाभ होती है, क्योंकि इससे हम अपने क्षेत्र में हो रही बदलाव के विषय में भी सही जो सुचारू रूप से जान सकते हैं। वर्तमान में इस प्रकार के मानचित्रकारों की बड़ी मांग थी। आजकल पृथ्वी के बेहतर ढंग से समझने के लिए भूगोलवेत्ता, अभिवेत्ता और पर्यावरण वैज्ञानिक, नगर योजनाकार और सामाजिक वैज्ञानिक तथा अन्य लोग भी भौगोलिक जो सूचनाओं का यंत्रों का प्रयोग सीख रहे हैं। क्योंकि भूगोल के बारे में जानना हर एक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक अगर आपको लैंड का पता नहीं रहेगा, क्षेत्र का पता नहीं रहेगा, तो आप कैसे वहाँ पर कोई जो है घर भी बना सकते हो, कैसे कुछ कर सकते हो। क्योंकि मेन जो होता है यहाँ पर ज्योग्राफी का रीजन देखना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। भूगोल न केवल इस बात की खोज करता है कि पृथ्वी पर कहाँ क्या है, बल्कि यह भी कि कहाँ क्यों है। भूगोलवेत्ता जो है क्रियाकलापों की अभिव्यक्ति का अध्ययन करते हैं। मानचित्रों के सावधानीपूर्वक प्रयोग से प्रतिरूपों की पहचान और साथ ही इन प्रतिरूपों के बनने के कारणों का जो है हमें पता लगता है। और इसके बाद क्षेत्रों का वर्णन स्थल रूपों के वितरण और जनसंख्या, मकानों के आकार और कृषि के आधार पर किया जा सकता है। यानी आज के समय में भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसके बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, हम स्थल रूपों को भी जान सकते हैं, वितरण को भी जान सकते हैं कि स्थलों की वितरण किस प्रकार है, वहाँ पर जनसंख्या कितनी घनत्व है, मकानों के आकार किस प्रकार है, कृषि के आधार क्या होती है। तो ये सारे जो है जो भूगोल के थ्रू ही हम जानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। वे स्थानों के बीच के संबंधों और आवागमन की जानकारी प्राप्त करते हैं तथा उसे क्षेत्र में होने वाले स्थानिक प्रक्रियाओं के विषय में जो है निष्कर्ष भी निकालते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है यहाँ पर। वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण विश्व खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा के प्रभावकारी उपयोग और पर्यावरण संरक्षण जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं हमारे वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा की प्रभावकारी उपयोग और पर्यावरण संरक्षण जैसी समस्याएं जो है आए दिन अपना सर खड़ा कर ही रहा है। कहते हैं समानताओं के मुद्दे और टिकाऊ विकास भी जो है सामान्य महत्व रखते हैं, और इस सभी की जो है प्राप्ति संसाधन स्वतंत्र रूप से प्रयोग द्वारा ही किया जा सकता है। पर्यावरण प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी तथा यह समझने में कि समस्याओं के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक यहाँ पर माना जाता है। यदि ये बात हम संक्षेप में करें तो ये साफ यहाँ पर जो है इन सब बातों का जो निचोड़ निकलता है हम 4 पॉइंट में समझ सकते हैं। क्योंकि भूगोल के स्थान का एक विज्ञान है, यानी भूगोल स्थान का एक विज्ञान है, एरिया यानी सरफेस एरिया का एक विज्ञान है। मानचित्र भूगोलवेत्ताओं के लिए आवश्यक उपकरण है, क्योंकि मानचित्र से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। आपने देखा भी होगा कोई भी घर बनाने से पहले हमें उसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कहते हैं इंजीनियर के पास जाकर हम डिज़ाइन बनवाते हैं, तो मानचित्र से ही वो सारी जो है पूरी बातें लिया जा सकता है। मानचित्र को बनाने के लिए अंकीय भूगोल सूचना तंत्र नए उपकरण है, लेकिन आजकल देखा जाए तो अंकीय भूगोल सूचना तंत्र जो है नए उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। भूगोल के अध्ययन और मानचित्रों के उपयोग से स्थानिक योजनाएं बनाई जा सकती है, क्योंकि भूगोल के अध्ययन से ही आप जो है स्थानीय जो योजना बनाने में सक्षम हो सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आधारभूत संकल्पनाएं। देखिए आधारभूत संकल्पनाएं का अर्थ क्या होता है। इतिहास के विभिन्न कालों में भूगोल को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। तो ये कोई दो राय नहीं, सच्चाई है कि इतिहास में अगर देखा जाए तो भूगोल को जो है विभिन्न रूपों में परिभाषित किया भी गया और बताया भी गया है। प्राचीन यूनानी विद्वानों ने भौगोलिक धारणाओं के 2 पक्षों में रखा है। प्रथम जो है गणितीय पक्ष है, जो कि पृथ्वी की सतह पर स्थानों की अवस्थिति को केंद्रीय करता था, तथा दूसरा जो है यात्राओं और क्षेत्रीय कार्य द्वारा
भूगोलिक सूचनाओं को एकत्र भी करता है, यानी भूगोल में क्या क्या चीज़ें हैं उन सब की जो है एकत्र करना इसका परम धर्म है। इनके अनुसार भूगोल का मुख्य उद्देश्य विश्व के विभिन्न भागों की जो है भौगोलिक आकृति और दशाओं का वर्णन भी करना होता है कि विश्व में कैसा क्षेत्र है, कैसा भूगोल है, क्या इसकी आकृति है, कैसा इनकी दशा है। तो ये सब चीज़ों का भी अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। भूगोल में परिदृश्य की उपागमन का उद्भव भी जो है भूगोल की वर्णनात्मक प्रकृति पर बल देता है। यानी हेमलोल्ट के अनुसार भूगोल प्रकृति से संबंधित विज्ञान है और यह पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी साधनों का अध्ययन एवं वर्णन करता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बना देता है। यहाँ पर एक बात आया कि महत्वपूर्ण विचारकों ने भूगोल को मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के रूप में परिभाषित किया है। देखिए बहुत सी बातें यहाँ पर रहती है कि भूगोल पृथ्वी तल के अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है या भूगोल मानव पर्यावरण अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में भी देखा जा सकता है। तो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको जानना जरूरी था। अब देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी। व्हाट डू यू मीन टू development of geography here? The first here ascent period or development of geography. The earliest record of illustrate of the interest of the scholar in understanding the physical dominance of the earth by making map and astronomical is the measurements. The Greeks are given to the credit of began to the earliest geographers is a prominent among them began to the however Herodotus and the Hellenes, Aristotle and Eratosthenes. And second development here of pre-modern period. That is the most important here of pre-modern period. This period is starting from to the middle of 50th centuries and continually with the 18th century earlier provide us the amounts of information about the physical and culture natures of the world by the travels and exploration of earlier geography. The earlier is the 17th century, a witness of the beginning of a new specific geography. Christopher is a Columbus and the Vasco da Gama. There is the discover for the India of the Vasco da Gama and is a fascinating in Magellan and Thomas Cook were the important explorers and travel among those. And various account is a man Boldet and the military help to the geographers of the period and they contribute in the development of the cartographics and discovering new land and developing a geographic into a scientific discipline. There is the most important discovery here is a pre-modern period. The next here is a modern period. Their Lecture and the Humboldt are the frequently referred to us to the founder of modern geography. Generally, is the latter half of 19th century is considered as a period of modern geography. The first modern geographer is a true sense was the Ratajal as who built there is a structure of modern geography on the foundation laid down by classical geographer. There is the most important here. The next here is the development or recent period. The recent period is the most important development. The development of geography during the post is the Second World War period has been to the very rapidly. The America and the European geographers was the Stone is a have to contribute the maximum during this phase. And the Stone is described as geographical as a science dealing with the areas differentiation the present day and geographers look upon traditional approach and systematic approach as a complementary rather than to the contradictory. यहाँ पर हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है भूगोल का विकास। देखिए भूगोल का विकास कैसे हुआ। कहते हैं भूगोल के बारे में हर समय कुछ न कुछ जो है इन्फॉर्मेशन इंसानों ने इकट्ठा किया और धरती को जानने की बहुत ही जिज्ञासा ने उसको बहुत कुछ जो है सिखा दिया। अगर हम बात करें प्राचीन काल की तो प्राचीन काल में ये बात साफ जाहिर हो गया था कि आरंभिक प्रमाणों के अनुसार इस समय के विद्वान मानचित्र निर्माण और खगोलीय मापों द्वारा पृथ्वी के भौतिक तत्वों को समझने की कोशिश कर रहे थे। और भूगोल में आरंभिक विद्वान देने का श्रेय यूनान को ही जाता है, क्योंकि यूनान ने ही भूगोल पर जो है काफ़ी रिसर्च भी किया था, जिसमें प्रमुख थे हेमर्स, हेरोडोटस, लेथस, अर्थुस और द एंड्रोस्थेनीस। ये सारे के सारे साइंटिस्ट जो थे बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने भूगोल की खोज में जो है विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
उसके पश्चात अगर हम समय काल जाते हैं पूर्व आधुनिक काल के समय, तो इस समय भी बहुत इंपॉर्टेंट खोज हुई जो कि बहुत ज़रूरी था। और कहते हैं इनसे बहुत चीज़ें के जो बारे में हमें जानना। वास्को डी गामा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने जो है भारत की खोज करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यही बात पूर्व आधुनिक काल के अंतर्गत बताया जा सकता है। यह काल 15वीं शताब्दी से मध्य से शुरू होकर 18वीं शताब्दी के पूर्व तक चला। और यह काल आरंभिक जो है भूगोल वार्ताओं की खोज और अनुवाद द्वारा विश्व की भौतिक एवं संस्कृति प्रकृति के बारे में विविध ज्ञान प्रदान करता है। कहते हैं 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल नवीन वैज्ञानिक भूगोल की शुरुआत का गवाह बना और क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगेलन और थॉमस कुक इस काल के प्रमुख अन्वेषकों में से एक माने जाते हैं। और वेनियस कॉन्स और हेम्बोल्ट और रीटर इस काल के प्रमुख जो है भूगोलवेत्ताओं थे। और इस विद्वानों ने मानचित्र कला के विकास में योगदान भी दिया, यानी इन्होंने मानचित्र पे जो है काफ़ी जोर दिया और नवीन स्थलों की खोज की, जिसके परिणाम स्वरूप भूगोल एक जो है वैज्ञानिक विषय के रूप में विकसित हुआ। और ये जो है आज वैज्ञानिक विषय के रूप में जाना भी जाता है। कहते हैं भूगोल का जो भी स्टूडेंट इसका अध्ययन करते हैं वो उनके लिए बहुत काफ़ी फायदेमंद रहता है, क्योंकि पृथ्वी के धरातलों के बारे में जानना और उनके जो है पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में समझना ये बहुत काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। उसके पश्चात आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल में बहुत चीज़ जो है आज जो है डिजिटलाइज कर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात आता है। अगर रीटर हेम्बोल्ट का उल्लेख बहुतः आधुनिक भूगोल के स्थापक के रूप में किया जाता है और सामान्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का काल आधुनिक भूगोल का काल माना जाता है। वस्तु रेजल्स प्रथम आधुनिक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने चरस्मत भूगोलवेत्ताओं के द्वारा स्थापित नींव पर जो है आधुनिक भूगोल की संरचना का निर्माण किया। यानी आधुनिक काल में काफ़ी जो है भूगोल का जो है विकास हुआ, लेकिन ये जाते जाते नवीन काल में जो है बिल्कुल ही विकसित हो गया। यदि बात हम करें यहाँ पर नवीन काल की, तो कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ और इसमें जो है हर्ट्जस्टोन जैसे अमेरिकी और यूरोपीय भूगोलवेत्ताओं ने इस दौरान अधिकतम योगदान दिया। और हर्ट्जस्टोन ने भूगोल को एक ऐसा विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन कराता है। और वर्तमान भूगोलवेत्ता ने जो है प्रादेशिक उपगमा और क्रमबद्धता जो उपगमा को जो है विरोधाभासी की जगह पूरक जो उपगमा के रूप में देखते हैं, जो कि बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है। कहते हैं अगर भूगोल की जो अगर हम बात करें परिभाषा, तो वो सारे चीज़ हम करेंगे समय समय के साथ। और आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा भूगोल का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इसी तरह त्रिपाणी सेंटर का लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और भूलना दो बातें नहीं भूलना है, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने त्रिपाणी स्टडी सेंटर का सहायता करना है। और दूसरी बात ये रहता है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी आपके हित में रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा। और आप ये सोचिएगा कि मैं दोबारा त्रिपाणी स्टडी सेंटर को जो है यूट्यूब पर सर्च करके प्राप्त कर सकता हूँ, तो शायद नहीं भी होगा। इसका कारण ये है कि अगर कोई टॉपिक आप रिसर्च करोगे तो वहाँ पर पहले से ही बना हुआ टॉपिक ही आपको नज़र आएगी, त्रिपाणी स्टडी सेंटर का टॉपिक नज़र नहीं आएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर आप सभी विषय के सब्जेक्टों के बारे में जान सकते हो, समझ सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।